Dear students of BTech second year, I am Dr. Rohit Prasai, Associate Professor of Mathematics. I welcome to all of you for the today's session on unit number 4. Thirty-six, 56. Thirty-eight. After 7 minutes, I will start the today's session based on the inverse Laplace transform as a part 2 of unit number 4. Roll number 20. हेलो हेलो Yes, tell me. सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बहुत जोरे से बोल रहा हूँ बेटा। आपने वॉल्यूम को थोड़ा तेज करिए। आपने हो सकता है हेडफोन का ईयरफोन जो यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कम कर रखा है। सर फुल है, मेरा फुल है। मेरा भी फुल है बेटे। तो हम लोग आज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड पार्ट है यूनिट नंबर 4 का, नंबर 5। आफ्टर 7 मिनट आई विल स्टार्ट दिस सेशन। रोल नंबर 54। 54 हो गया। 34, 23, रोल नंबर 23, रोल नंबर 20 सचिन पांडे। 23 हो गया। सुमित पर्वते। रोल नंबर 50। 23 हो गया। 56 हो गया। रोल नंबर 48, 52। सर 50। रोल नंबर 50 is common, completed. रोल नंबर 28 सर 50 सुमित पर्वते। हो गया बेटा, बोल दिया मैंने। ओके सर। एडमिट करते हुए मैं अटेंडेंस ले लेता हूं आपकी। रोल नंबर 16, रोल नंबर 16 प्रदीप जाडो। गौरव चौहान। कुणाल जसवाल। रोल नंबर 31। 31। संतोष मोरे 29। संतोष मोरे। ओके। रोल नंबर ऋषि। ऋषि कौन है आपके पास में? यस गीते। जलोदी। After 3 minutes, I will start the session. 3 मिनट के बाद आपकी क्लास शुरू कर दूंगा। स्लाइड शो
22. Gaurav Chauhan, roll number T01 50. Harshit, roll number 20. Mukesh, roll number 34. 29. 20. Just wait for 2 minutes. Today talk is also very important for you. How can you find the Laplace inverse of various functions? Harshit. $29. Okay, sir. Okay, students. Number 41. Now I'm going to share the screen. Okay, my dear students of BTech second year, Civil Branch, I am Dr. Anand Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Humanity Department at Chamidevi Guru House Tuition Indore. I welcome to you for the sixth lecture on unit number 4, based on the inverse Laplace transform and of the elementary function. Along with this, I recall this, how can you find the inverse Laplace for using the direct formula. And then we are going to discuss the first shifting theorem, which I have been already discussed in Laplace case. Just you have to reverse the formula, nothing is too difficult. And then we come to the method of finding inverse Laplace by partial fraction. When the direct formula fail, then we have the indirect approach, as we call the partial fraction techniques, which you have been already used on solving integration of rational functions. आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन को फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए या डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज की है। उस टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पर भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन को इवैल्यूएट करने में हम लोग यूटिलाइज करेंगे। इन सारे बातों को हम लोग एक एक करके वन बाय वन साइड से आपको डिटेल में समझाने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर्म्स। Let us come to the next slide. So what do you mean by inverse Laplace transform? Just we recall once again. We have already defined
It is only defined by the Laplace transform. First of all, we define the Laplace transform any function is denoted by using a parameter s. p भी हो सकता है, पैरामीटर कोई भी लिया जा सकता है, टाइम के हिसाब से कोई भी टाइम डोमेन हो सकता है आपका, विंडो फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, so the Laplace of ft equal to phi of s, which is defined by an improper integral having the limits from 0 to infinity, जो कि कल भी मैंने आपको रिवाइज की थी, हर बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, e raised to minus st f of t dt. Then f of t is called the inverse Laplace of the function phi of s. तो इस इंटीग्रल के अंदर ये जो फंक्शन f of t होता है, इसको हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में. रोल नंबर, why you are going to out here? Ritik Sharma, Indrajit Chauhan, रोल नंबर 22. एक बार क्लास ज्वाइन करने के बाद बाहर मत रहिए, इससे हम लोग क्लास डिस्टर्ब हो रही है. समझो कोई बात को. इट इज डिनोटेड बाय एल इनवर्स. एल का मतलब होता है लाप्लास, उसके ऊपर पावर माइनस है, इसका मतलब इनवर्स लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एस एफ ऑफ टी. ये मैंने आपको पहले भी इस यूनिट के स्टार्टिंग में समझाया था मैंने, आज फिर से इसको रिवाइज किया है, क्योंकि अब हम पूरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स लाप्लास पे ही होगा. ये हमारे इस यूनिट का आप सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, कह सकते हैं. ऋषि कौन है? ऋषि नाम का स्टूडेंट कौन है? अपना नाम बदल के ज्वाइन मत करिए. जो भी स्टूडेंट बार बार बेवकूफी करेगा उसको मैं अटेंडेंस दूंगा नहीं, आज की ध्यान रख लेना. से बार बाहर होएगा, फिर वेटिंग रूम में आएगा ज्वाइन करने के लिए. ओके, आते हैं हम लोग उन सारे फॉर्मूले को इनवर्स के फॉर्म में रिकॉल कर रहे हैं जो आपको मैंने लाप्लास में बताए थे. जिन लोगों ने लाप्लास के फॉर्मूले अभी तक याद रखे हैं, बस उन्हीं फॉर्मूले को इनवर्स करना है, रिवर्स करना है हमें, तो आपको लाप्लास इनवर्स के फॉर्मूले मिल जाएंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ e raised to at होता है 1 upon s minus a. तो इसलिए 1 upon s minus a का जो लाप्लास इनवर्स होगा वो आपका ओरिजिनल फंक्शन e की पावर at हो जाएगा. इसी तरह से हमने जो दूसरे स्टैंडर्ड फंक्शन के लाप्लास स्टडी किए हैं, उन सबको मैं आपके सामने एक एक करके इनवर्स फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नेक्स्ट स्लाइड में ये अगला आ रहा है, ये वही फॉर्मूला है, बस इसमें माइनस का अंतर है. जब डिनोमिनेटर में फैक्टर प्लस है तो इसकी पावर में अब माइनस आएगा, और यदि यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसकी पावर में प्लस आएगा. चाहो तो एक ही फॉर्मूले के रूप में याद रख सकते हो, लेकिन मैंने आपको दोनों फॉर्म बता दिए हैं ताकि आपको किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो. माखन अहिरवाल ज्वाइन करने के बाद मुझे रीजन बताएगा कि क्यों लेट हुआ है आज. तो इसके बाद हमने आपको बताया था कि लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है. तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा. इस तरह से आपको कोई भी एग्जामिनर यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू न्यूमरेटर में दे सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस न्यूमेरिक वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको उसका लाप्लास इनवर्स मिल जाएगा. हम लोग आने वाले समय में आज की क्लास में वो सब कैलकुलेशन, ये सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. अभी आप दिमाग में फॉर्मूले का सेटअप कर लीजिए. 1 अपॉन s की पावर n की वैल्यू होती है t की पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n. ये चौथा फॉर्मूला है. फिर पांचवा फॉर्मूला आ रहा है साइन फंक्शन का, जिसमें आप लोग साइन का जब लाप्लास लेते हैं साइन ए टी का, तो आपका फॉर्मूला होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. चूंकि a s पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको सेपरेट करके यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया है. तो आपके सामने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है साइन ए टी बाय ए. इसी तरह से फिर हम कॉस का आपको बताने जा रहे हैं. काश का भी फॉर्मूला इसी तरह से आपका डिजाइन होता है.
कॉस के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में पैरामीटर एस आता है और डिनोमिनेटर तो आपका कॉमन रहता है, ये होता है कॉस 80 का फॉर्मूला। फिर हम इसके बाद आपको इनवर्स के फॉर्मूले बताए थे जिसमें डिनोमिनेटर में केवल माइनस था। हरिओम चौहान, ये आपके सामने cos हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नॉर्मल cos फंक्शन है तो प्लस का साइन है डिनोमिनेटर में होता है, और यदि हाइपरबोलिक फंक्शन है तो माइनस का साइन होता है। उसी तरह से साइन के फॉर्मूले में भी यही करेक्शन है, 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन a। यहाँ तक सभी को फॉर्मूले क्लियर होंगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं। शशांक पांडे, सचिन पांडे, और किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो म्यूट करके हमसे बात कर सकता है। हम इस फार्मूले का, इन फार्मूले का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो गाइस आ रहे हैं हम लोग पॉइंट, हमें इस फंक्शन का लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो पहले इसका एनालिसिस करेंगे, मींस रीजनिंग करेंगे मतलब आप जरा अपने दिमाग को रिकॉल करेंगे, क्या हमारे पास इस तरह के फंक्शन का जिसमें न्यूमरेटर में दो टर्म होती है, एक पैरामीटर की, एक पैरामीट्रिक टर्म होती है और दूसरा कांस्टेंट टर्म होती है, डिनोमिनेटर में तो पैरामीटर है, क्या इसका अभी तक हमने अभी जो आपको 7-8 फार्मूले बताए हैं उसमें कोई फार्मूला इसमें लग रहा है क्या? लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा है तो फिर मैं आपको दूसरी तरकीब बताने जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता नहीं है एग्जामिनर, इस तरह के ही इनडायरेक्ट एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हमने आपको नोट्स में भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन बैंक में भी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप लोगों को डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना ही होगी। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर नो है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला ये अपने लिस्ट में नहीं है। जो अभी मैंने लिस्ट आपको 8 फार्मूले की बताई है, इसमें ये किसी भी फार्मूले को डायरेक्ट बिलोंग नहीं करता है। तो क्या कैसे करें, किस तरह से हम इस फंक्शन को अपने इन स्टैंडर्ड फार्मूले में रिड्यूस करें, उसके लिए सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताई है लाप्लास में, वही की वही इनवर्स में भी अप्लाई होती है। तो गाइस एल इनवर्स लिखेंगे, 3s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 आपका फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक रैशनल फंक्शन है। तो क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला है, और एक फार्मूला है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसलिए आपने ऋतिक शर्मा, आज तेरे को मैं एब्सेंट दे के रहूंगा बेटे, मुझे मालूम है तू म्यूट करके मोबाइल में आवाज सुनाता है। क्या मजा आता है तेरे को इस तरह की बेवकूफी करने में? ह्यूमिडिटी नहीं है? तो ये आपके सामने स्केलर प्रॉपर्टी का दी है, जो भी कांस्टेंट पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई में है उसको आप लाप्लास इनवर्स के बाहर ले लेते हैं। तो वही किया मैंने, पहली टर्म न्यूमरेटर में 3s की, तो 3 को बाहर ले लिया मैंने, न्यूमरेटर में पैरामीटर है। क्या हो रहा है? ये कौन हम बजा रहा है? श्रेयांश? एक क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी बना सकता है, एक क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ सकता है, समझ लेना जीवन में। सो 3 हमारा स्केलर है, 3 को बाहर लिया है, एल इनवर्स का साइन रखा है क्योंकि इनवर्स निकाल रहे हैं। न्यूमरेटर में s है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 16 है। एक एक स्टेप क्लियर करके बता रहा हूं। फिर दूसरी टर्म में लिखने के लिए आपके पास प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे। एल इनवर्स ऑफ 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16। आप ध्यान दीजिए बेटे, आपके पास डिनोमिनेटर में यदि पैरामीटर का वर्ग है s स्क्वायर है, तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में लिखना होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है क्या हम इस नंबर को किसी नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हैं?
शशांक पांडे 16 को तुम स्क्वायर में लिख सकते हो, किसी नंबर के वर्ग में लिख सकते हो। कर्तव्य चौहान बताइए जल्दी से बेटे, बताने में मैं ऐसे आपकी स्लाइड आगे खसका सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी बात एक एक स्टेप क्लियर हो, पढ़ाना इफेक्टिव हो। हाँ बोलो बेटे, 16 का वर्ग कैसे लिख सकते हैं? 16 को वर्ग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 16 किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। अरे सचिन पांडे 16 का वर्गमूल नहीं मालूम तेरे को? 16 का वर्गमूल क्या होता है? बोला तो था। 4 का स्क्वायर है ना बेटे, तो वही करेंगे बेटे, एस 4 का क्या प्लस एस का मतलब 4 का स्क्वायर। इसी तरह से आपके सामने भी है दूसरी टर्म में। ऐसा दिमाग में एज्यूम करते हुए आगे बढ़िए और बताइए मुझे, फॉर्मूला लिखिए इसमें, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या होता है? लिस्ट की तरफ देखो और बताओ मुझे। पहली टर्म का लाप्लास इनवर्स मिल जाएगा, इसी तरह से दूसरी टर्म का लाप्लास इनवर्स मिल जाएगा बेटे, जो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं आपके सामने। ये रहा आपके सामने बेटे रिजल्ट। ये एक स्टेप और लिख दिया मैंने, अभी मैं केवल एक स्टेप आपको बताना चाह रहा हूं। 3 तो आपका एज इट इज रहेगा। अभी आपके सामने मैंने जस्ट परफेक्ट स्क्वायर के सामने परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक स्टेप लिखिए, ताकि यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको स्टेप मार्किंग करके एग्जामिनर पूरे नंबर दे सके, 1-2 नंबर काटने की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। इस तरह से प्रेजेंट करो अपने आप को, ठीक है गाइस? शशांक पांडे, गौरव चौहान, ये स्टेप क्लियर है? अब आ जाएंगे हम लोग अपना रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लिखेंगे, उसको अप्लाई करके आंसर लिखेंगे। तो 3 एज इट इज रहा आपका, ये है cos 80 का। cos 80 का फॉर्मूला होता है, a का मतलब 4 है तो ये हो गया 3 cos 4t। इसके बाद फिर ये होता है sin 80 अपॉन a, तो 4 पहला से है आपका, तो 4 अपॉन 4 और sin a का मतलब है 4, 480 हो गया बेटे। ये 4 से 4 कट गया तो आपके पास फाइनल आंसर आया 3 cos 4t प्लस sin 4t। ये आपके सामने आंसर फाइनल हो गया आपके इस क्वेश्चन का। इस तरह से आपको जो मैंने फॉर्मूले की लिस्ट बताई है, जो फॉर्मूला क्या तरकीब बताया है, उसको हम इस तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। अब आप लोग आज और इस क्वेश्चन पर और प्रैक्टिस करेंगे, इस मेथड पर, और आगे बढ़ेंगे। अब हम आ रहे हैं अगली स्टेप में कि जो हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था उसको इनवर्स में कैसे अप्लाई करते हैं। पहले हम उस फॉर्मूले को इनवर्स के फॉर्म में रिकॉल कर लेते हैं। जब भी हमारे पास फंक्शन में पैरामीटर की जो वैल्यू है s प्लस ए होती है या s माइनस ए होती है, अभी हम आपके सामने s प्लस ए का ऑप्शन बता रहे हैं, s माइनस ए का ऑप्शन अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर s प्लस ए है, जो भी आपका फंक्शन होगा तो इसमें से जो a दिया हुआ है इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है और माइनस है तो प्लस लेना है। और इसके बाद ये जो s प्लस ए है वो पैरामीटर s से शिफ्ट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो गया। इसलिए इसको हम शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं कि ये s प्लस ए s से शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में इस प्रॉपर्टी को फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है, टेक्निकल भाषा में ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है श्रेयांश? यस सर। अब आ रहे हैं हम इसके फॉर्मूले के एप्लीकेशन की तरफ। कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा इसको हम प्रॉब्लम से समझा रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लिया है, थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम लिया है, क्योंकि प्रॉब्लम शिफ्टिंग वाला फिर बता दीजिए एक बार। देखिए ये
जब भी आपके पास इस तरह का ये फंक्शन दिया हो फाई ऑफ एस, इसको पूरे को अपन फाई ऑफ एस बोलते हैं, तो इस फाई ऑफ एस में यदि एस के साथ एस प्लस ए आपको दिया है, एस प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तब आपने आपको क्या करना है, ई की पावर में जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, रियल ए का मतलब कोई भी रियल वैल्यू है, उसका माइनस लेके एक्सपोनेंशियल की पावर में ले लेंगे। वेरिएबल आप टी ले सकते हैं, यदि वेरिएबल एग्जामिनर देता नहीं है तो टी जो है कॉमन सिंबल है वेरिएबल का। ओके, और फिर इसके बाद एल इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो पैरामीटर एस प्लस है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस एस में शिफ्ट हो जाएगा। एस प्लस ए रिप्लेस बाय एस, ये सिंपल भाषा होती है। एस प्लस ए को अपन एस से रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, बदल देते हैं। अब क्लियर हुआ कृष्णकांत, इंद्रजीत? अब आगे बढ़े। यस सर। सचिन पांडे, अब आ जाइए बेटे, मैं कुछ टिपिकल एग्जांपल समझो सॉल्व करके बता रहा हूं आपके सामने। ये रहा हमारे सामने एग्जांपल, जो कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए इनडायरेक्ट अप्रोच ही लगेगी। तो हमारे स्टेप पर फॉर एस प्लस 12 अपॉन एस का प्लस एट एस प्लस 12, सबसे पहले अपन इसका सिंबल लिखेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास का क्या सिंबल होता है सचिन, एल के ऊपर -1, तो एल इनवर्स ऑफ 4s प्लस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में, इस फंक्शन में आपको लिस्ट को यदि आप देखेंगे, कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई भी फार्मूला इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में दो समस्या आ रही है। पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक ही समस्या थी, लेकिन इसमें दो समस्या है। वो कौन कौन सी समस्या है बेटे, एक तो डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं दिया है, और न्यूमरेटर में मल्टीपल एस का 1 नहीं है, तो इसलिए अपने को सबसे पहले ड्यूटी है कि न्यूमरेटर में एस के मल्टीपल को 1 करना होगा। तो हमने वही किया है, इस 12 को थोड़ा रीएडजस्ट करके लिखा है। तो देखो गाइस बेटे, 4 से 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 16 माइनस 4 कितना होता है, 16 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा सचिन, 12। 12। तो हमने 12 को इस तरह से ब्रेक करके लिखा है कि हमारे पास इसका जो मल्टीपल है वो 4 कॉमन आ जाए। इसका मतलब जब इसके साथ 12 साथ में आएगा तो इसको लिखने में हमारे सामने आसानी होगी। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि सर 4 ही क्यों लिया है, इसका और क्या दूसरा रीजन है, तो दूसरा रीजन अभी आपको क्लियर होगा बेटे, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, उसके हिसाब से हम न्यूमरेटर की सेटिंग करते हैं। न्यूमरेटर की सेटिंग डिनोमिनेटर से की जाती है। ऐसा आपको 12th क्लास में टीचर ने इस तरह के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालने में या डिफरेंशिएशन का निकालने में आपको बताया गया होगा। वही तरकीब यहाँ पर लाप्लास में हम लोग यूज कर रहे हैं बेटे, कोई नई तरकीब नहीं है। कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग 12th क्लास में सीखते नहीं है, इसलिए कॉलेज लेवल पर समस्या आती है। इसलिए मैं आपको सारी बातें रिकॉल कर रहा हूँ टाइम के साथ में। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है बेटे, डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर करना है। आप परफेक्ट स्क्वायर की आपने तरकीब सीखी है, क्या होती है, कौन बताएगा, सचिन बताएगा मुझे। सचिन, डिप्लोमा में भी बार बार बताया जाता है, मैथ्स के टीचर आपको बताते हैं। यदि तुमने क्लास अटेंड नहीं की है तो आपने ये मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्ट कुंजी से पास हुए होंगे डिप्लोमा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको समझा दूंगा। पूछो बेटा, बताओ, बताया क्या परफेक्ट स्क्वायर कैसे किया जाता है। मैंने सिविल के बच्चों को, बाकी जो बच्चे रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, उनको मैंने बता चुका हूँ, फर्स्ट में भी, सेकंड सेमेस्टर में ही, आज फिर से थर्ड सेमेस्टर में बता रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर करने की टेक्निक्स क्या होती है, याद करो बेटे, याद नहीं आ रही तो जल्दी बोलो, क्या तरकीब है। अब सेंस से पूछूंगा तो बता देगा, मैं दूसरों से चाह रहा हूं कि क्वेश्चन का आंसर दो बेटे। देखिए, बेसिक फंडा ये बोलता है परफेक्ट स्क्वायर का, यदि आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मतलब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है, और यदि वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है,
तो अपन को क्या करना है, जो लीनियर टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करना है। ये रहा आपके साथ लीनियर टर्म s, इसका कोएफिशिएंट है 8, इसको आधा करो, 8 का आधा कितना होगा 4। कोई भी नंबर दिया है उसका आधा करना है, भले आधा होता है नहीं होता है, उसको 2 से डिवाइड करना है। आधा करना मतलब उसको 2 से डिवाइड करना बेटे, और जो भी नंबर मिला है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इस टर्म में जोड़ना है और घटाना है। इस टर्म में आपको जोड़ना भी है और घटाना भी है। पहली टर्म को एज इट इज लिखना है एस स्क्वायर, और दूसरी टर्म को भी एज इट इज लिखना है, और फिर तीसरी टर्म में उस नंबर को जोड़ना है और घटाना है। तो ऐसा करने से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फर्स्ट टर्म में फॉर्मूला मिल जाता है, मतलब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो बचा कुचा है उसको भी अपन परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, मतलब ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 बचता है, -4 बचता है, तो -4 को अपन ने 2 का वर्ग लगा दिया है। फिर चूंकि डिनोमिनेटर में पैरामीटर s प्लस 4 आ रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी हमारे को s के साथ +4 चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इसमें एडजस्टमेंट किया कि 12 को हम इस तरह से लिखें ताकि s के साथ +4 आ जाए। यदि डिनोमिनेटर में -4 होता तो न्यूमरेटर में माइनस के हिसाब से आप एडजस्टमेंट करते। तो ये वाला जो माइनस वाला 4 उधर लिया है, सेकंड टर्म में लिया है, इसको आप यहां पर लेते। ठीक है बेटे। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे स्टूडेंट, वो क्वेश्चन भी मैं तुमको आगे के जो क्वेश्चन दिमाग में आएंगे वो भी आपको समझा रहा हूं, पूरा कंप्लीट परफेक्शन के साथ समझा रहा हूं बेटे। तो कोई दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है किसी के, सर यहाँ माइनस में आए, परफेक्ट स्क्वायर माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। आप क्या करेंगे ऐसे केस में, ये वाली टर्म को यहाँ ले लेंगे, और जो यहाँ पर नंबर आपका बैलेंस आ रहा है 16, उसको आप +16 इधर लिख देंगे। होना ये है कि आपको +12 को लिखना है, बस +12 को रीराइट करना है एज पर अवर डिजाइनर्स, एज पर अवर डिमांड। ओके गाइस, अब इसके बाद इसमें इनवर्स फार्मूला लगाना बहुत आसान हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को। जहां जहां पर पैरामीटर s है उसकी जगह आपके पास s प्लस a आ रहा है। a का मतलब आ रहा है बेटे 4। तो बस अभी आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करना होगा, जिससे आपके सामने ये एक्सप्रेशन बनेगा। वो फार्मूला लगाने के पहले मैंने इसको सेपरेट कर दिया है, आप चाहें तो इसके बाद भी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिवीजन फॉर्मूले से पहले सेपरेट कर रहा हूं आपके सामने। तो यहां पर आपका माइनस की जगह प्लस आएगा, तो हमने ये सेपरेशन कर दिया है 4 इंटू एस प्लस 4 अपॉन एस प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन आएगा, 2 स्क्वायर अपॉन एस प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हम इसमें वो फॉर्मूला, यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया है, यहाँ पर 60 है, इसमें मिस्टेक नहीं है आपकी। तो 4 इंटू ई की पावर 480 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 80, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है इसलिए हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला बनेगा। फिर से हम आते हैं, ये देखिए गाइस, माइनस ए स्क्वायर है, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, और s प्लस 4 की जगह आपको s रखना है, इधर भी s रखना है। तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला लगेगा, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला लगेगा। ये देखिए गाइस, 4 इंटू ई की पावर -4t कॉस हाइपरबोलिक 2t -4 ई की पावर -4t 1/4 ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t, जिसमें से ये आपने कॉमन ले लिया है, सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया है। ये 4 से ये 4 कट गया है सेकंड टर्म में, और e⁻⁴t आपने कॉमन ले लिया है, तो अंदर आपका बैलेंस बच रहा है 4 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2t माइनस साइन हाइपरबोलिक 2t। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व हो जाता है। अब हम आपके सामने पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई डायरेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे केस में हमारे पास जब रैशनल फंक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर में x से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं आपके पास पैरामीटर्स के, तब ऐसे केस में इस तरह के फंक्शन का आपने जब इंटीग्रेशन निकाला होगा तो
12th क्लास में, तब भी ये पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज की होगी। वही टेक्निक हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप सभी को पार्शियल फ्रैक्शन करने का सबसे पहला स्टेप मालूम होगा कि सबसे पहली कंडीशन क्या होती है। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी इस तरह का फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से एक कम होती है। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तो है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है। अब इसके बाद जो अगली समस्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आ रही है, जिसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, वो है कि सर यहां पर भी आपके पास जो प्रॉब्लम है, ये डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स हैं, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इनका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। वही जो अभी तरकीब बताई आपको मैंने, एस के कोएफिशिएंट जो भी दिया है उसको आधा करेंगे, तो 2 का आधा 1 होता है, 1 को जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो एस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक पर आपके सामने पहले 3 टर्म को लेके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, और जो बचता है -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना बचता है 4। तो 4 को भी अपन ने परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया है 2 स्क्वायर के फॉर्म में। यही के सेम टेक्निक्स आपको इस दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर में भी अप्लाई करना होगी, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। जब आपके डिनोमिनेटर में इस तरह की परफेक्ट की स्क्वायर की सेटिंग पूरी हो जाए, तो आप फिर न्यूमरेटर में भी उसी तरह का परफेक्ट स्क्वायर का सेटिंग करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर भी आपके सामने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है। अभी तक पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में था क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में केवल पैरामेट्रिक टर्म थी, लीनियर टर्म थी। अभी आपके सामने क्वाड्रेटिक टर्म आ गई, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो आपको न्यूमरेटर को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो अपन को किस तरह से कौन सा नंबर लेंगे, वो आपको डिनोमिनेटर से आइडिया मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सब जगह आप देख रहे हैं पैरामीटर s+1 आ रहा है, इसलिए आपको न्यूमरेटर की भी सेटिंग उसके हिसाब से सोचना होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर के फॉर्म में सेट हो रहा है, क्योंकि s का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का आधा करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करके जोड़ोगे घटाओगे, तो आपके सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और जो भी बैलेंस होगा वो आपके सामने -1 प्लस 3 कितना होता है 2 मिलता है। तो ये आपके सामने 2 लिखा हुआ है, एज इट इज सिंप्लीफाई करके आपके सामने लिखा है। क्योंकि आप डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में लग जाएंगे इस क्वेश्चन के उसमें, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए सबसे पहले अपन परफेक्ट स्क्वायर बना लो, और फिर इसके बाद जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लो, और फिर इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक से अडॉप्ट कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में। वही हमने अगले स्टेप में आपके सामने किया है। ये आप देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी पैरामीटर है वो s प्लस a के फॉर्म में है, s प्लस a या s माइनस a। यदि माइनस होगा तो e की पावर में प्लस आएगा, और e की पावर में यदि यहाँ पर प्लस हुआ तो माइनस आएगा। जो भी नंबर दिया हुआ है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस में फैक्टर तो माइनस साइन लेंगे, और माइनस में है तो प्लस लेंगे, और प्लस में है तो माइनस लेंगे। बार बार बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि मैंने कॉपीज को देखा है, कहने के बावजूद भी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्लियर अभी से ही कर रहा हूं। ओके बेटे, तो हम आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करने की स्थिति में। e की पावर -t l इनवर्स, और जहां पर s प्लस है उसकी जगह अपन ने s रख दिया है, तो s स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज है। डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 4 है, और ये आ रहा है आपका s स्क्वायर प्लस 2 है। अब इसके बाद अब आप उस पोजीशन में हैं कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन जैसे आता है उसका लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के लैप्लास इनवर्स ले लीजिएगा, तो आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि 1 सेकंड का टाइम बचा है, वो आपके सामने स्लाइड शो करके बता रहा हूं, जो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको
देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा स्टेप्स को। ये स्लाइड्स पूरी हो गई आपकी। ये आपके सामने पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक्स को मैंने दोबारा रिकॉल करके बताया है। आपके सामने डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, तो जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो न्यूमरेटर में आप सिंगल कांस्टेंट लेते हैं, तो a अपॉन x प्लस 4 b अपॉन